یہ ہے 32 سالہ محمد حنیف، جو نہ تو سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے۔ پیدائشی طور پر قوت گویائی اور سماعت سے محروم حنیف کی اپنی زندگی تو آواز کی گونج سے محروم ہے ہی، اس کے اہل خانہ کی زندگیوں میں بھی آواز کا کوئی گزر نہیں۔ حنیف کی بیوی، 3 بچے اور ان کے ساتھ رہنے والی ایک بہن سمیت تمام افراد ہی گویائی اور سماعت کی نعمت سے محروم ہیں۔ پورا گھرانہ اشاروں کی زبان کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ خاندان گونگا اور بہرا تو ضرور ہے، لیکن خاندان کا کوئی فرد اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں۔ کام سے تھکا ہارا باپ گھر پہنچتا ہے تو اس کی راہ تکتے بچے گود میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ بھی بچوں سے اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ بیوی پانی کا پوچھتی ہے۔ یہ کنبہ جس گاؤں میں رہتا ہے، وہاں دیگر افراد سے رابطے میں اسے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ گاؤں والے بھی ان کے اشارے سمجھتے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ 250-300 افراد پر مشتمل اس گاؤں کے زیادہ تر افراد پیدائشی طور پر گونگے اور بہرے ہیں۔ یہاں تک کہ حالیہ سیلاب کے دوران اس خاندان کا حصہ بننے والا نومولود بھی اس نعمت سے محروم ہے۔ اسانجی تقریباً آبادی 300 ہے، ان میں اسانجا 200 کھن گونگا ہے۔ یہ ذکر ہے اس گاؤں کا جو اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا حلقہ انتخاب ہے۔ حنیف اور گاؤں کے دیگر افراد کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے سما کی ٹیم کراچی سے بدین اور پھر یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر نندو شہر پہنچی۔ یہاں سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر خستہ حال سڑک پر سفر کرتے ہوئے گونگے بہروں کے گوٹھ لاکھا ڈینو لڈ پہنچنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ راستے کی خستہ حال یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اہل اقتدار کے ہمسائے میں رہنے کے باوجود آوازوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ گاؤں میں پرندوں کی چہچہٹ اور مرغ بانگ تو سنی جا سکتی ہے، مگر آبادی کی اکثریت کے بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہونے کی وجہ سے گاؤں شہر خاموشہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ لہلہاتے کھیتوں کی زمین کے یہ باسی سماعت اور گویائی سے بے شک محروم ہیں، لیکن قدرت نے انہیں اشاروں میں بات کرنے کی صلاحیت سے نواز دیا ہے۔ وہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف طرح کی اونچی آوازوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا تو علم نہیں کہ گونگا اور بہرا پن ان میں کب پیدا ہوا، تاہم 1994 میں انتقال کر جانے والے ان کے 70 سالہ بزرگ بھی اسی پراسرار بیماری کے شکار تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گونگے اور بہروں کی کئی نسلوں کا عینی شاہد یہ درخت بھی اب مزید ان باسیوں کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہا، اور شاید اسی لیے اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اپنی جگہ، لیکن گاؤں کے اس درخت پر موجود یہ خالی گھونسلے اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب پرندوں نے بھی ایک ایک کر کے شہر خاموشہ سے کوچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لاکھا کی آنے والی گونگی بہری نسل کے غموں سے اپنی نئی نسل کو کہیں دور لے جانا چاہتے ہیں۔ अचे कोन थो, डॉक्टर वटि वञ त उहे चवनि था असांखे इन बीमारी जी ख़बर कोन्हे। لاکھا ڈینو کے نام سے منسوب گاؤں دہائیوں پہلے آباد ہوا، جس نے ہر قسم کے موسموں کا ایک مدت تک مقابلہ کیا۔
चांद की चांदनी गांव वालों के दुखों की शाहिद है तो सूरज की तपिश भी इनके गमों की गवाह। बोलने और सुनने का गम अपनी जगह, बीमारियों ने भी इन गरीबों के घर की राह देख ली है और तालीम की कमी तो गोया जलती पर तेल का काम कर रही है और गांव के बासी हर गुजरते दिन के साथ गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। हाणोकी बोर्ड जे सबबा असांजा ॿ टे अहिड़ा गुंगा आहिनि उहे पागल भी थी चुका आहिनि। हंसते मुस्कुराते इन देहातियों को देखकर अंदाजा होता है कि मिर्जा गालिब ने ये शेर शायद इनके लिए ही कहा था। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। यूं ही कर रोता रहा गालिब तू ऐ अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम कि वीरान हो गई। ताहम कुव्वत गोयाई से महरूम ये अफराद मुनफरिद अंदाज से अपने दुखों और गमों की दास्तान और मुआशरे की बेहिसी को बयान करने की कोशिश करते नजर आते हैं। गांव की खवातीन ने अपनी माजूरी और बीमारी को मजबूरी नहीं बनने दिया। वो सरों पर मटके और हाथों में बर्तन थामे दूर से पीने के लिए पानी भरने जाती हैं। खानदान भर के लिए खाना पकाना तो खैर इनकी जिम्मेदारी है ही, सिलाई कढ़ाई करके भी अपने खानदान का हाथ बटाती हैं। मजलूमियत की तस्वीर लाखा डीनू की खवातीन बेपनाह मुश्किलात के बावजूद मजहबी फरीजे से हरगिज गाफिल नहीं, बाकायदगी से नमाज अदा करती हैं और बारगाहे इलाही में अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करती हैं कि कोई उन्हें भी गूंगे और बहरेपन की वजूहात से आगाही दे ताकि वो इस अजियत से छुटकारा हासिल कर सके। 250-300 नफूस पर मुश्तमिल लाखा डीनू लुंड गोट के मकीनों का दुख समात और गोयाई से महरूमी तक ही महदूद नहीं। कुव्वत गोयाई और समात की महरूमी के साथ साथ गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा थायराइड के मर्ज में भी मुब्तला है। बीमारी ने गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लाखा डीनू के मकीनों की जिंदगियों को मजीद मुश्किल बना दिया है। यहाँ की बेशतर खवातीन थायराइड में मुब्तला हैं और इनका मर्ज इस स्टेज पर जा पहुंचा है कि ऑपरेशन ही इसका वाहिद हल नजर आता है। मगर जहाँ 2 वक्त की रोटी मैसर ना हो वहाँ ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाए जाएं? असांजो ॻोठ बि हिते ग़रीब आहे, केर बि पुछण बि कोन आयो आहे। छा आहे छा न इलाज नकी बाबा हिते ज़रिए ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि। ये गंधा गोड़ियूं थियनि थियूं, पोइ उन्हनि जो इलाज कोन्हे, पैसो कोन्हे जो उन्हनि जो इलाज थिए। हाल तो ये है कि अहले इख्तिदार के साथ यहाँ की इंतजामिया भी ला इल्म है। 250 से 300 मकीनों में बच्चों, खवातीन और मर्दों समेत कमोबेश 50 अफराद बोल और सुन नहीं सकते। वहाँ 40% अफराद में थायराइड शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गूंगन खे जेका गले जी बीमारी आहे, असां वटि एतिरो पैसो कोन्हे जेको असां उन्हनि जो इलाज कराए सघूं। इलाके के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रसूल खासखेली का कहना है कि उन्हें कुछ अरसे पहले ही लाखा डीनू गोट के मकीनों को दरपेश मसाइल का इल्म हुआ है। डॉक्टर खासखेली ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने यहाँ के मसाइल के बारे में अभी तक आला हुकाम को मुतला नहीं किया। ताहम सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने हुकूमत को आला सतह पर नोटिस लेने की अपील की है। गोरापुन जो है ये तकरीबन यहाँ कोई 40% जो है इनमें से है जो कि पैदाइशी हैं।
छोटी सी आबादी में इतने ज़्यादा लोग जो हैं बहरे गूंगे मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। गवर्नमेंट को, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है उनको पता तो है, लेकिन जो है उनको स्टेप लेनी चाहिए कि अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि भाई यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिनमें इनका ट्रीटमेंट हो जाए। बदीन से समा के नुमाइंदे सुलेमान मेंद्रो ने सबसे पहले गोठ लाखा डीनू के मसाइल को दुनिया के सामने पेश किया। उनका कहना है कि यह हल्का इंतखाब कौमी असम्बली की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का है। पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल एतमाद और बहुत करीब समझे जाते हैं। बासर अफराद बिलाशुबा मुल्क की सियासत पर तो अपडेट होंगे, मगर अपने हल्के लाखा डीनू लुंड गोट के मसाइल का उन्हें इल्म नहीं। बड़ी बदनसीबी से कहना पड़ता है कि इस गांव की तरफ इन लोगों ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा, और इतना बड़ा सैलाब आया उसी के दौरान भी ये लोग बेयार मददगार पड़े रहे, और ये इनका जो सिलसिला है बीमारी का ये मुसलसल चलता आ रहा है। गांव के बच्चे उम्र के इस हिस्से में हैं जिसमें वो न सिर्फ जदीद सहूलत जैसे लफ्ज बल्कि गम और दुख जैसे अल्फाजों से भी ना आशना है। इसीलिए ये फूल जैसे बच्चे सिर्फ उछल कूद करते नजर आते हैं और अपने खेल कूद का सामान भी खुद ही ईजाद कर लिया है। हालात ने इन्हें ज़रूरत ज़िंदगी के लिए आपस में इशारों से बात करने की सलाहियत तो अता कर दी है, ये अपनी बेबसी का इजहार भी इशारों में ही करते नजर आते हैं। गांव का सबसे ज़ईफ शख्स तो अपनी उम्र गुजार चुका, लेकिन मौजूदा और आने वाली नस्लों के बारे में वो बहुत परेशान है। कुछ न पूछो कि ये शहर गूंगों का है। लोग सुनकर भी यहाँ कुछ बोलते नहीं, देखते हैं मगर लब खोलते नहीं। हम के इस शहर में जहरे अमरोज पीकर अगर चुप रहे, कल हमारी नसों में यही जहर आग बनकर उतर जाएगा। फिर ये आतिश फिशां खामोशी के निशान कौन जाने कि कब फट पड़े। कौन लेकिन सुने यहाँ हम अगर कुछ कहें, इसलिए चुप रहें और कुछ ना बोलें कि ये शहर बहरों का है।